Assalamualaikum, dear students. Here is Professor Indra from Punjab College of Turkey. Today I am gonna discuss about ecology. What is ecology? And this syllabus includes for fourth semester plant physiology and ecology, botany 403 for chemistry. And then same is the case and same as the syllabus is for sixth semester zoology. So here is the lecture, students, on ecology. What is ecology? When you are going to discuss ecology, you come to know and familiar with this word ecology, and you can split this word into two parts. First one is ecos and second is logos. Ecos and second is logos, which are German words. And what are the meaning of these words? Ecos meaning household, husbandry. Logos mean to study. So here comes the two words from German language, ecos and logos, household, husbandry and to study. What is? Okay. Now we comes with the two words household, husbandry and to study. Household husbandry, you know, you are very well aware with the word husband. Husband who take cares, and household घरेलू चीजें. तो घरेलू चीजों की टेक केयर्स करने वाला हाउस होल्ड. टू स्टडी मुताबिक करना. अब इसको समअप करते हैं. इकोलॉजी क्या है? आपके घरेलू माहौल का ताल्लुक देखना है बाहर के साथ. स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, स्टडी ऑफ interaction of living organisms of same species or different species with their environment. Now, two key points are here: organisms and then environment. Organism. What are organisms? Living organism, which has body, which has soul, which can metabolate its body and use energy. And then environment, biological and physiological conditions where an organism lives is called environment. तो आपके इर्द गिर्द की वो तमाम चीजें, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो कहलाती हैं एनवायरनमेंट. तो उस एनवायरनमेंट के साथ जो ताल्लुक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो कहलाता है इकोलॉजी. अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंट लेवल्स. Ecology has certain levels. First one is organismic ecology. First one is
organismic ecology. Organismic ecology in which only interaction between individual and their environment studied. यानी कि हम किसी छोटे से लेवल पे जाके सिर्फ एक खास लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक देखेंगे तो ये कहलाएगा ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी. एंड देन पॉपुलेशन. नेक्स्ट कम द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन is a big level than the organismic ecology. What is population? Interbreeding living organism within the same area of same species is known as population. For example, हम कहते हैं किसी खास सिटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो तादाद है वो कहलाएगी पॉपुलेशन. तो उस पॉपुलेशन की माहौल के साथ क्या ताल्लुक है, ये है पॉपुलेशन इकोलॉजी. फॉर एग्जांपल लाइक से मैं कहता हूं कि अब्दुल हकीम में एक फॉरेस्ट जखीरा है, जंगलात का जखीरा है. तो उस जखीरे का लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट है? क्या यहां का माहौल ठीक है, आलूदगी कम है? अगर यहां पे रावी रिवर है तो क्या उसका हमें फायदा होता है? तो ये हमारा जो अब हम ताल्लुक इसको देखेंगे, ये एक बड़े लेवल पे इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी. एंड देन कम्स द थर्ड लेवल व्हिच इज कम्युनिटी. कम्युनिटी इकोलॉजी. What is community ecology? When different populations are living together at the same place at the same time, then this is known as community ecology. What is community and which level it has? So obviously, as it's clear from whiteboard, you can see that organismic ecology has first one level, then second level is population ecology, third is community ecology. तो कम्युनिटी इकोलॉजी में हम मुख्तलिफ पॉपुलेशंस का उसके एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक देखते हैं. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमंस, उसके साथ डिफरेंट कैट्स, उसके बाद कैट्स के साथ डॉग्स, ठीक है. तो आंट्स कितनी है, पॉपुलेशन कितनी. अब इन सब का क्या ताल्लुक है हमारे एनवायरनमेंट के साथ? दिस इज नोन एज कम्युनिटी इकोलॉजी. वेरी इजी. एंड देन नेक्स्ट लेवल कम्स अप विद द बायोम्स. बायोम्स इज अ fourth level of ecology which includes a large regional area primarily determined by its climate. यानी कि हम अगर किसी क्लाइमेट की बेस पे एक बड़े एरिया को डिफाइन कर लें, वो बड़ा एरिया फिर कहलाता है बायोम. अब इसकी मिसाल देना चाहूंगा मैं यहां पे. मिसाल के तौर पे आपने सहरा का नाम दिया तो आपके जहन में क्या आता है? फाइनली फौरन आपके जहन में आएगा कि ये सर उस माहौल की बात कर रहे हैं जिसमें रेत बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, बारिश बहुत कम है, पीने का पानी नहीं है, और ऐसे पौधे होंगे जिनके ऊपर कांटे हैं और पत्ते नहीं होंगे. आप समझ रहे होंगे मैं कैक्टस की बात कर रहा हूं. तो ये चीजें आपके माइंड में फौरन आ जाती हैं. इसी तरह से अगर मैं कहूं मरी तो आपके जहन में आ जाएगा बर्फबारी होगी, वहां ज्यादा जंगलात हैं, ज्यादा दरख्त हैं, पहाड़ हैं, अनइवन लैंड है. ठीक है. अब मरी को छोड़े मैं उसको एक और नाम दे रहा हूं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट.
ह्यूमिड फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं लैंड को। 7 मेजर बायोम बनाए गए हैं, जिसमें डेजर्ट लैंड है, ह्यूमिड लैंड है, सब ह्यूमिड लैंड है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है। तो बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। तो मेजर की पॉइंट यहां पे है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है वहां, क्लाइमेट की बेस पे आप उसके बायोम उसका लेवल बनाते हैं। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, हम स्टडी कर रहे थे इकोलॉजी। तो देखें बायोम क्या है, एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं पूरे डिवीजन मुल्तान का जो हम टेम्परेचर देख रहे हैं ये हमारी बायोम में आ जाएगा। इसी तरह से थर चले जाएं, थर वो उस बायोम के ऊपर आ देंगे। क्योंकि आपने सुना होगा कि हर 10 किलोमीटर के बाद टेम्परेचर और सारी वेदर कंडीशन चेंज होती है। तो इसी तरह से जब हम एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं तो वहां पे बायोम भी चेंज होते हैं। तो डिफरेंट 7 रीजन बायोम्स हैं जो कि क्लासिफाई किए गए इकोलॉजिस्ट के जरिए। उसके बाद नेक्स्ट लेवल बायोम से नेक्स्ट लेवल इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। फर्स्ट वन इज इको एंड देन सेकंड इज सिस्टम। First one is eco and second is system। जब आप इन अल्फाज के मतलब को जान लेंगे तो फिर ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा इकोसिस्टम को डिफाइन करना। इको क्या है, इको कहते हैं एनवायरमेंट, इको कहते हैं एनवायरमेंट एंड सिस्टम। सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स which are working as unit। तो इकोसिस्टम, अब इसमें हम फिर वही बात कि इसको हम रिलेट करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का या इंडिविजुअल्स का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है। अब मैं इसको आसान वर्डिंग में तब्दील कर रहा हूं। इकोसिस्टम को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बायोटिक components and second is abiotic components। What are biotic components? बायोटिक कंपोनेंट में हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होंगे इकोसिस्टम में। ह्यूमंस, ants, dogs, cats, जो कि एक घर में है, एक माहौल में है, एक कम्युनिटी में है, एक बायोम में है, और इसके साथ रिलेशनशिप देखना है ए बायोटिक कंपोनेंट का। अब वो देखते हैं। ए बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे सॉइल, वाटर, एयर, लैंड। ए बायोटिक कंपोनेंट। हमारा क्या रिलेशन है? फॉर एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड है, मैं इसे किस लिए इस्तेमाल कर रहा हूं? लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग के साथ ताल्लुक, ये मेरा इकोसिस्टम बन गया। ये एक रूम है, व्हाइट बोर्ड है, तो इसका जो ताल्लुक है ये कहलाता है इकोसिस्टम, which can be divided into 2 parts, biotic component and abiotic component. So this was all about what is ecology and type and different types of levels of ecology. So मैं जल्दी से इसको रिवाइज कर देता हूँ कि इकोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक है, जो कि
ग्रीक वर्ड इकोस एंड लागोस से निकला हुआ है। हाउस होल्ड हस्बैंड टू study of interaction of living organism with its environment, and then comes its levels with organization ecology, एक खास लेवल पे, एक खास इंडिविजुअल के लेवल पे इसका ताल्लुक। फिर पॉपुलेशन जो तमाम इंडिविजुअल का डिफरेंट पॉपुलेशन को जब स्टडी करेंगे तो वो कम्युनिटी इकोलॉजी कहलाएगा। आफ्टर दैट कम्स द लार्जेस्ट इकोलॉजिकल लेवल बायोम, व्हिच इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, जैसा कि हमने एग्जांपल दी थी डेजर्ट। इसी तरह से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम टू वर्ड से इको एंड सिस्टम, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट का उसके एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक। अब यूनिट में मैं भी आ सकता हूं, जब मैं एक की बात कर रहा हूँ तो वो ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा, जब मैं पूरी फैमिली की बात कर रहा हूँ तो वो पॉपुलेशन में आ जाएगा, और जब मुख्तलिफ फैमिलीज की बात कर रहे होंगे और मुख्तलिफ स्पीशीज की बात कर रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा, कम्युनिटी इकोलॉजी, एंड दैट कम्स द बायोम। ठीक है, आखिर में हम बताएंगे कि इकोसिस्टम जो है वो टू कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। That was all from ecology. Thank you.